Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I, Ms. Sadia Iqbal, on behalf of Kerazin Academy Senior Campus, welcome you all to AppSex Online Support Program. As you all know that this is our 10th week going on in day 3, and of course I'll be sending you this video on Thursday because Friday would be off due to 14 August, so you people have to do it because we have to cover up the syllabus, right? And you can send me the assignment on Saturday, right? If you don't want to send me the assignment on Friday, you can send it to me on Saturday. So let us get started with the very important exercise, concepts, right? Today we will be learning about application of derivatives, exercise 2.9. We will be inshallah completing exercise 2.9, and this exercise, this lecture is very important because this would be having last concepts of chapter number 2 and exercise 2.9 and 2.10 both, right? So entirely the same concepts would be used in exercise 2.10, so that's why this lecture is very important. In 2.10 you would be learning about again application of derivatives, but there would be word problems, so word problems on the same concepts, right? So today we will be learning about inshallah critical point, point of inflection. It would be in the last video. Point of inflection would be in the last video. This would be in the first video, critical point, and then we will be understanding the concept of finding extreme values, which is question number 2, and in that we will be finding maximum and minimum values of the given function by using first and second derivative tests, right? Don't worry, these are quite easy inshallah. You just have to listen to everything vigilantly, right? And we will be doing inshallah question number 2 to question number 5 of exercise 2.9, and that's how inshallah we will be done with exercise 2.9. So let us get started with the first topic, which is critical point. Okay, a point is said to be critical if in AB, यानी किसी भी interval AB में एक point को critical point कहेंगे if f dash of x is equal to 0 for x belongs to AB and f dash of x is undefined. If you remember, ये तो किसी और चीज़ की भी definition थी. We learned about this in the previous video. Remember, this was the definition of stationary point. And what was stationary point? That if a function is increasing, let's say, and it stopped for a while somehow, right, and then it started decreasing gradually. Suppose आपने एक बॉल फेंकी, ऊपर गई कहीं पे थोड़ा सा रुकी और फिर it started coming down, तो वो ये डिक्रीजिंग. तो वो जो पॉइंट जहाँ पे वो रुकी, उस पॉइंट को हमने क्या कहा था, याद है? स्टेशनरी पॉइंट. वो पॉइंट जो रुके, स्टेशनरी उसी चीज़ को कहते हैं जो रुकी हुई हो. सो स्टेशनरी पॉइंट. एंड इफ़ यू रिमेंबर, वो पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे? फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 टू पॉइंट दैट वैल्यू ऑफ एक्स. रिमेंबर? ओके. नाउ क्रिटिकल पॉइंट इज़ ऑलमोस्ट द सेम. क्रिटिकल पॉइंट की पहली डेफिनेशन तो यही है. सो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, अगर क्रिटिकल पॉइंट है या स्टेशनरी पॉइंट है, सो आई कैन कॉल दिस पॉइंट एज CP एज वेल, क्रिटिकल पॉइंट. वाई? बिकॉज इट हैज़ द सेम थिंग. बट क्रिटिकल पॉइंट में ये चक्कर है कि एक तो इसकी ये डेफिनेशन है, ओके, दिस इज़ ऑल्सो क्रिटिकल पॉइंट, दिस वन, बट एक और भी तरीके से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड होता है. अगर इफ फंक्शन इज़ गोइंग इंक्रीजिंग, लेट्स से, एंड सडनली it came down directly, without being making a curve or something, suddenly it came down like this. ठीक है जी. और if it was, अच्छा अभी तो हमने increasing कहा, right? what if it was decreasing, ये suddenly ऊपर चला गया, ठीक है, तो उस पॉइंट को भी CP कहते हैं. और वहाँ पे क्या होता है? अच्छा, लेट मी टेल यू. इंक्रीज़ हो रहा था, एकदम से नीचे आ गया. व्हाट इज़ द एंगल नाउ? 90 डिग्री. वी कैन सी, राइट? फंक्शन पहले इंक्रीज़ होता है, एकदम से नीचे आ गया. 90 डिग्री इज़ द एंगल. रिमेंबर स्टूडेंट्स, एफ डैश ऑफ एक्स इज़ ऑलवेज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, राइट? सॉरी, tan of the first derivative is always tan of the angle, right? Now if the function is coming down directly, 90 degree is the angle. What is tan of 90 degree? We all know it is infinity, undefined. So अगर इस तरह का कोई केस हो, तब भी वो जो पॉइंट होगा, which point, जिस पे वो डायरेक्टली नीचे आ गया, this point, this would also be CP. ठीक है. So these two things are the definition of CP. एक तरह से क्रिटिकल पॉइंट जो है आपका, वो स्टेशनरी पॉइंट भी है, और उसकी आगे वास्ट फॉर्म क्या है कि अगर वो अनडिफाइंड आ जाता है तो भी आप कहोगे दैट इज़ क्रिटिकल पॉइंट,
This definition is basically used in your book, that's why I'm telling you. Okay, now the second most important concept जो कि इस exercise में 99% यही concept use होगा, relative maxima and minima यानी extreme values by using second derivative test. Firstly I'll be telling you what is relative maxima or minima, ठीक है, what are those things, and then we will be using second derivative test, उसका भी concept दूँगी. Okay, look at this. Okay, now look at this. If a function is, let's say, see, function was increasing, stopped for a while and came down, right? We all know already about this. यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है. दिस इज़ माई स्टेशनरी और क्रिटिकल पॉइंट. वी ऑल नो अबाउट दिस. वो तो है, लेकिन वो वैल्यू, वो मैक्सिमम, वो पॉइंट, यू नो, वो पॉइंट जिस पे किसी फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज़ होना शुरू हो गया, बट वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो होता है आपका रिलेटिव मैक्सिमा. कितनी आराम सी बात है. The point at which the function would be at its maximum stage, you know, maximum point, that would be the relative maxima, and the point where it would be at its lowest value, वो क्या होगा हमारा relative minima, वो point. Clear? अब find कैसे इस point को या maxima वाले point को find कैसे करेंगे? There are two ways. एक है आपका, अच्छा, डू नॉट लुक एट दिस, ये वी आर डन विद दिस. ओके, देयर आर टू वेज. नंबर वन, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. नंबर टू, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपकी इस एक्सरसाइज में वुड बी यूज 99%, 95%, you can say. Why am I saying 95%? Because you know there is only one question in which second derivative test would get failed, and we will be using first derivative test क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल है. सो वी नेवर प्रेफर दैट, वी ऑलवेज यूज़ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्योंकि आसान होता है, ईजी होता है, राइट. इट डजेंट टेक दैट मच टाइम. And there is just one question of first derivative test, which is question number 2 first part, and there's just an example which is same like this question number 2 first part. उसमें भी first derivative test ही लगेगा. Other than that, in all the questions we will be using like question number 2, 3, 4 and 5, except for that one part. बाकी सब में we will be applying second derivative test. So that's why I'll be, you know, firstly I'm telling you about second derivative test कि ये क्या है. Okay, let us get started. Second derivative test is this, like firstly if you are given f of x by them, ठीक है, let's say, तो आप हमेशा उसको ले लोगे y is equal to f of x whatever the function is. Okay, now all you have to do is you have to find your f critical value यानी critical point या stationary point. And how do we find that? For that हम उसका first derivative लेते हैं और हम उसको किसके equal put करते हैं, equals to 0, राइट. ज़ीरो क्यों पुट करते हैं? ताकि हमारे पास x की वैल्यू निकल आए, जो भी कोई भी वैल्यू है. अच्छा, f डैश ऑफ x आपने फाइंड किया और उसको पुट कर दिया किसके इक्वल, f डैश ऑफ x फाइंड किया और उसको इक्वल पुट कर दिया 0 के. लेट्स से x का आंसर आ गया c. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड योर सेकेंड डेरिवेटिव, और उस सेकेंड डेरिवेटिव में जो भी उसका आंसर आया, ठीक है. सो नाउ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में जो भी उसका आंसर आएगा, ठीक है, कोई भी जो भी वैल्यू आई, वी विल बी पुटिंग दैट वैल्यू ऑफ x जो कि हमारे पास f डैश ऑफ x को 0 पुट करने से आई थी, ठीक है. दैट वैल्यू, आफ्टर पुटिंग दैट वैल्यू इन योर सेकेंड डेरिवेटिव, इफ़ योर सेकेंड डेरिवेटिव बिकम्स लेस देन 0, मतलब नेगेटिव, then you will say that your function which is f of x has relative maxima. Now you will be thinking कि ये क्या बात हुई, इट इज़ गेटिंग नेगेटिव साइन एंड वी आर सीइंग रिलेटिव मैक्सिमा. येस, इट इज़ सो, ये याद रखना है आपने, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में. इसी तरह इफ़ एफ डबल डैश ऑफ यानी सेकेंड डेरिवेटिव एट सम पॉइंट सी जो हमने निकाला हुआ है, उस पर इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, तो हम क्या कहेंगे, ओके, इट हैज़ रिलेटिव मिनिमा. ठीक है. ओके, लेट मी शो यू द थिंग्स ओवर हियर. Firstly you have to find, let me zoom it in for you people. Okay, firstly you have to find f dash of x and f double dash of x and put f dash of x equals to 0 to get your critical point or stationary point. Done. Number 2 step, put that point c in second derivative, that is f double dash of x,
इफ़ एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो यानी पॉजिटिव, then for that point C belongs to that interval, then f of x has relative minima, as I told you. relative minima कब? अगर f डबल डैश ऑफ x में C में पुट करने से वो वैल्यू पॉजिटिव आती है तो, और अगर वो नेगेटिव वैल्यू देती है तो वी विल सी इट हैज़ relative मैक्सिमा, ऑपोजिट है. ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली करते हैं, देन यू विल गेट इट वेल. Practically means through an example. Firstly, look at your exercise 2.9. These are the questions which are left. Question number 2, 3, 4 and 5. Very important, especially question number 3 लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का. बाकी भी पार्ट्स ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट हैं, जो भी आपको डिफरेंट लगे समझ आए वो आ सकता है, बट ये 3 तो किसी सूरत नहीं छोड़ना, ये पार्ट भी नहीं छोड़ना, ये भी नहीं छोड़ना. एनीवेज, ओके, तो फर्स्टली एक्सेप्ट दिस पार्ट, बाकी सब का कॉन्सेप्ट यही है. ठीक है, जो अभी हमने समझ लिया. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या करेंगे? नंबर 1 एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, उसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ एक्स निकल आएगी. उसको सिंपली एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव हर एक में फाइंड करेंगे. फाइंड करने के बाद जो वैल्यू यहाँ से निकलेगी उसको यहाँ पुट कर देंगे. चेक करेंगे कि क्या वो ग्रेटर देन ज़ीरो है. अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा देन इट वुड बी रिलेटिव मिनिमा, अगर लेस देन ज़ीरो होगा इट वुड बी रिलेटिव मैक्सिमा. दैट्स इट. और फिर उसको फंक्शन में वो फिर बाद का प्रोसेस है. क्लियर? लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. ओके, आई एम गोना डू दिस वन. ओके, लुक एट दिस. आई एम गोना सॉल्व इट हियर. x square minus x minus 2, this is the function which is given to me. I am saying okay, let y is equal to this thing. ठीक है, क्योंकि y हो या ये हो एक ही बात. Okay, now firstly I have to find first derivative. इसका first derivative क्या होगा? Power rule 2x, 2 minus 1 which is 2x, so it would be minus 1. x का derivative is 1, 2 का derivative is 0, so I am not writing it down. Okay, then put take second derivative. second derivative इधर ही ले लें, so it would be 2 into 1 minus 0, so it would be just 2. हो गया. ओके, नाउ फॉर स्टेशनरी हम कहेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट या फॉर स्टेशनरी पॉइंट एफ डैश ऑफ एक्स, पुट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब व्हाट वाज माय एफ डैश ऑफ एक्स? दिस वन, सो आई एम गोइंग टू पुट इट इक्वल्स टू 0, यानी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. मुझे x की वैल्यू निकालनी है, सो इट वुड बी 2x इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2. This is value of x. Now where am I gonna put it? In my second derivative, यहाँ पे. Okay, putting in f double dash of x, तो क्या बनेगा? यानी f double dash of x में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम पुट कर लेंगे 1/2, राइट? ओके, f double dash of x की जगह 1/2 इक्वल्स टू जो भी x की वैल्यू आई है वो पुट करेंगे, इक्वल्स टू 2. इट इज़ ऑलरेडी सिंपल 2. इट डजेंट हैव एनी वेरिएबल, सो ये तो 2 ही रहेगा. अब नाउ व्हाट इज़ इट? इज़ इट ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0? वी कैन सी इट इज़ पॉजिटिव, सो दिस इज़ ग्रेटर देन 0. इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन 0, हमने सीखा था इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0, इफ़ इट इज़ पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या आ गया फिर कि इस रिज़ल्ट क्या आ गया? इट हैज़ रिलेटिव मिनिमा. किसके पास रिलेटिव मिनिमा है? फंक्शन एफ ऑफ एक्स के पास, यानी वाई के पास क्या है? रिलेटिव मिनिमा. अब हमें वो वैल्यू भी फाइंड करनी है कि उस पीक पे, सॉरी इस पॉइंट पे रिलेटिव मिनिमा, ये पॉइंट क्या है, मतलब इसमें x क्या है और y क्या है, हमें ये वैल्यू भी फाइंड करनी है. वी ऑल नो वी हैव x ऑलरेडी, बट डू वी हैव y फॉर दिस रिलेटिव मिनिमा? नो, वी डू नॉट हैव. x तो हमारे पास है, सो इस x पे, इस x को आप इस y फंक्शन में पुट करोगे, इसमें जो आपका क्वेश्चन हुआ करेगा उसमें पुट करेंगे, एंड दैट्स हाउ वी विल बी गेटिंग आवर रिलेटिव मिनिमा और मैक्सिमा. ठीक है, क्या करेंगे? हम कहेंगे एट x इज़ इक्वल टू 1/2, y इज़ इक्वल टू, कहाँ पे पुट करेंगे क्वेश्चन में? y इज़ इक्वल टू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 2. टेक एलसीएम, सो द आंसर मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ. इट वुड बी -9/5, सॉरी 4. ये दोबारा कर लेते हैं. नाउ द पॉइंट वाज x इज़ इक्वल टू 1/2 और मैं रिलेटिव मिनिमा निकालने लगी हूँ. सो हम कहेंगे, क्योंकि हमें कहा है फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज़, तो एक्सट्रीम वैल्यू या तो रिलेटिव मैक्सिमा होगी या रिलेटिव मिनिमा होगी. और वो वैल्यू कैसे होगी? ये तो अभी हमें पता चला कि वो है रिलेटिव मिनिमा,
वैल्यू कैसे निकलेगी, वैल्यू यानी पॉइंट, वो क्या होगा एक्स वाई। अब एक्स तो हमारे पास इसमें आ गया था 1/2, उस पर आप वाई कैसे फाइंड करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1, लेट्स कॉल दिस 1। सो इट वुड बी वाई इज इक्वल टू, जहाँ एक्स है उसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, जो वैल्यू हमारी आई होगी। टेक एलसीएम, एलसीएम इज़ 4, यू कैन सी इस पे आएगा 4, सो इट बी 1 माइनस 2 minus 4 2s are 8, so the answer is minus 9 divided by 4. So what is my extreme value, what is my relative minimum point, it is 1 by 2 and minus 9 divided by 4, जो y का आंसर आया। That's it, this is your answer. Clear? If you still are confused, यहाँ पे आपको solution given है, you can check it out later on for minimum point at x. Look at this, ये, बट इसको आपने पॉइंट की तरह ज़रूर लिखना है, विच इज़ 1/2 एंड -9/4, यहाँ पे नहीं लिखा, यू हैव टू राइट इट दैट वे, ठीक है। ओके, लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल। अगेन फर्स्ट स्टेप एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, बल्कि इसको लिख लेंगे y इज़ इक्वल टू, ठीक है। नाउ वी कैन सी वी हैव टू फंक्शंस, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। हाउ डू वी अप्लाई दैट, फर्स्ट फंक्शन into derivative of second plus second function into derivative of first, ठीक है। now x minus 2 whole square into, what is the derivative of this, 1 plus ये as it is, what is the derivative of this whole thing, पहले तो पावर रूल लगेगा, 2 पहले एंड x माइनस 2 पावर में से एक माइनस हो गया तो ये 1 रह गया, इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दिस x माइनस 2, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस x माइनस 2, इट इज़ 1। क्लियर? नाउ राइट इट डाउन, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x माइनस 1 इंटू x minus 2. Okay, what is common in two brackets, two terms, x minus 2? Let us get it simplified a bit. So it would be x minus 2 plus 2 into x minus 1. Let me write it down again. Okay, so now it would be, it was like this, x minus 2 whole square plus 2 into x minus 1 into x minus 2. So I'm going to take it out as common just to get it simplified a bit. It would be x minus 2 plus 2 into x minus 1. Why am I doing this? Because I'll be taking f dash of x equals to 0. So now simplify it, it would be 3x minus 3. Is that so? Yes. Sorry, this is minus 2, so it is 4, 3x minus 4. Now this is my f dash of x. अब हमने क्या करना है, स्टेशनरी पॉइंट निकालना है ना। सो आई बी टेकिंग दिस थिंग इक्वल्स टू 0, टेक x माइनस f dash of x equals to 0. So it would be x minus 2 into 3x minus 4 equals to 0. अब तो मैंने मल्टीप्लाई इसीलिए नहीं किया था कि आइदर दिस इज इक्वल टू 0, जब दो ब्रैकेट्स इक्वल्स मल्टीप्लाई होगी 0 आ रही है तो हम आइदर ले सकते हैं ना कि या ये 0 होगी या ये 0 होगी। यहाँ से भी एक x की वैल्यू आ गई और यहाँ से भी x की एक वैल्यू आ गई, 4 divided by 3. Now I got my two stationary points, this one and this one, two critical points, एक ये और एक ये। दोनों के लिए x इज इक्वल टू 2 के लिए भी आप पूरा प्रोसेस करेंगे और पॉइंट निकालेंगे, और x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 के लिए भी आप पूरा प्रोसेस करेंगे और पॉइंट निकालेंगे। सो आई थिंक आई शुड बी डूइंग इट फॉर x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। ओके, बिफोर दैट मैं करूँगी x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3, उसके लिए आप खुद करेंगे। अब मुझे तो मेरे पास f डैश ऑफ x था विच वॉज x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 4, राइट। नाउ आई हैव टू फाइंड f डबल डैश ऑफ x ऑफ दिस थिंग, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव। सो उसी तरह से प्रोडक्ट रूल लगेगा, दिस इज़ फर्स्ट फंक्शन, दिस इज़ सेकेंड फंक्शन, सो इट वुड बी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ प्लस, आई एम सॉरी, it is x minus 2 into 3x minus 4, okay,
first function, second function. So f double dash of x would be x minus 2 as it is into derivative of this. What is derivative of this? 3 plus 3x minus 4 as it is, derivative of x minus 2, which is 1. Simplify it, it would be 3x minus 6 plus 3x minus 4. So 3x means 6x minus 10. This is my f double dash of x. अब ये मैंने क्यों निकाला? Because I have to put that value which is x is equal to 4 divided by 3 over here in this equation 6x minus 10. यहाँ पे मुझे put करनी है 6x minus 10 मेरा f double dash of x आया. x मैंने लिया था 4 divided by 3 वाला, 2 वाला आप खुद करेंगे. आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू ओवर हियर. तो अब देखते हैं क्या बनता है. मिनिमा बनता है कि मैक्सिमा बनता है. 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 10. 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा, 4 2 ज़ा 8. 8 माइनस 10 विच इज़ माइनस 2. So this is less than 0. It means it has what? Relative maxima. कहा था ना उल्टा होता है. Relative मैक्सिमा. और ये वैल्यू कैसे निकलेगी रिलेटिव मैक्सिमा की? x तो मेरे पास ये है, y की वैल्यू कैसे निकलेगी? इस वाली इक्वेशन में आप इस वैल्यू को 4 डिवाइडेड बाई 3 को x की जगह रिप्लेस करेंगे. जो आंसर आएगा दैट वुड बी वैल्यू ऑफ y एंड दैट वुड बी योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम. क्लियर? और अब इसी तरह से यू विल बी फाइंडिंग इट फॉर x इज इक्वल टू 2 कि उस पर ये क्या है, मैक्सिमा है कि मिनिमा है. दिस वॉज 6x माइनस 10. इसमें पुट करें f double dash of 2, so it would be 6 into 2 minus 10. 12 minus 10 is 2, which is greater than 0, so it has relative minima. ठीक है. उसी तरह से इसमें पुट करें, जो पॉइंट आएगा y का जो आंसर आएगा दैट वुड बी फ्रॉम हियर एंड दैट वुड बी योर पॉइंट ऑफ रिलेटिव मिनिमा. क्लियर? लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ दिस. मैं जूम इन कर लूँ इसको. एक ये पॉइंट था और एक ये पॉइंट था. ठीक है. You can see at x is equal to 2, 2 is the answer, so it has minimum value at x is equal to 2. और minimum value कैसे निकलेगी? इस 2 को आप पुट करेंगे अपने क्वेश्चन में. ये देखिए, ये पुट किया तो 0 आ गई. तो वैल्यू क्या बनी आपकी उस पर? 2 एंड 0. ये आपका मिनिमम वैल्यू है. एंड देन 4 डिवाइडेड बाई 3 पुट किया तो आपका आंसर क्या आया? नेक्स्ट पेज पे, यहीं पे. Okay, the answer was 4 divided by 27. So what is your value? Maximum value क्या आई? ये चीज़. Clear? So I'll be meeting you people inshallah in the next video. Stay tuned.